और यहाँ पे ना शेयर का शेयर वाला एक समय है। Good morning, members. Requesting members to put their phone on silent mode. So, before we start today's our session, requesting members to stand up for institute motto followed by national anthem. Okay. सिंधु गुजरात प्रणबंगा विविध हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जगति तरंगा तब शुभ मांगे जागे तब शुभ आशीष मांगे आगे खब जय गाता भारत माता की जय. So we are, changing our orthodox conventional method of, lecture sessions. This time we have invited our, advocate Pankaj Bapnaji. So from, income tax, auditing, GST, we are coming out. This is a burning topic and need of the hour. So we thought to invite, who is better than Bapnaji. So we thank Bapnaji for accepting the invitation on short notice. And I invite our past convener, Mahesh Bagadia ji, Anil Sharma ji, to give brief introduction for our learned speaker for today, and followed by momentum. Good morning, friends. Good morning, friends. Thank you, convener, for giving me this opportunity to introduce Shri Bapnaji. Advocate Pankaj Bafna is a distinguished techno-legal professional with more than 32 years of legal practice in Bombay High Court. He is the founder of Bafna Law Association, Bafna Legal LLB, Bafna Cyber
Juris LLP, with operations across Mumbai, Pune, Delhi, Ahmedabad, and Delhi. Widely recognized for his expertise in cyber law, cyber forensic, data privacy, cyber security, financial fraud investigation, and techno-legal advisory. He has advised law enforcement agencies, defense institutions, banks, corporates, trade bodies, and international organizations on complex cybercrime and digital governance matter. He is a certified cyber forensic, ethical computer security, arbitration, gemology, and graphology, making him one of the India's leading multidisciplinary cyber law professional. He's got many awards to his credit. Received the recipient of the Telangana Sociowood Cyber Achievement Award, Lokmat Best Cyber Crime Lawyer, ranked among the top cyber law professionals in India by Legal Era, recognized as the best cyber law faculty by Maharashtra Police. Key achievements: faculty trainer at Maharashtra Police Academy, advisor at Mumbai Maharashtra Police Cyber Crime Detection, cyber techno-legal trainer, and there is a long list. I think we will listen to him and know more about it. His professional associated with various organizations: Cyber Security Council of India, International Council of Jurists, European Lawyers Association, Indian National Bar Association, JAN International, JITO, Data Security Council of India, Indian Merchant Chambers, the Indo-American Chamber of Commerce, Federation of India Chambers of Commerce and Industry. With this brief introduction, I welcome Pankaj Bhavna ji. And to add to what Lalit said, conventional lectures on income tax, which is maximum 30-35%, and GST, which is 18%, but the cyber fraud is 100%. So this is the most important topic, according to me, and very current. We need to be aware, and we also need to enlighten people around us, including our societies where we stay, our clients, and very senior citizens and all. So that is this makes it a very important topic for all of us. Now I request to welcome the guest with a small memento. Bhavna ji, the dais is yours. इसको बंद कर दीजिए, PowerPoint PPT दीजिए। Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Thank you very much. एक वकील को बुलाने के लिए सबसे पहले धन्यवाद। मैं वकीलों को तो पहले ही किया जाता है, इन्विटेशन कार्ड की वजह से मेरे वकील साहब नहीं आए तो बहुत अच्छा है। आदमी आप आ गए तो पता नहीं करवा रहे करवा रहे तो पता नहीं खाने को देख के सबसे पहले यही मन में आता है, जैसे खाकी को देख क्या करेंगे इधर आवाज़ अगर घर पे भी आता है पासपोर्ट वेरिफिकेशन करे तो बिल्डिंग में बहुत सिक्योर हो जाती है कि अपना जी के घर पे पुलिस है, वो क्यों आई है वो कोई नहीं देख सकता। वैसे वकील अगर आ गया unwanted person always every day. But thank you, CA fraternity, for coming. This is the fourth time I'm with your chapter over here. ये टॉपिक जैसे आज आप लोगों के लिए बनी क्रिकेट के बनी था अराउंड 45 years ago, और उस टाइम पे कुछ सुनता नहीं था। And basically I am from the ज्वेलरी बैकग्राउंड, तो मारवाड़ी बंदा हूँ। जब मार्केट में नर्स ऑफिसर ज्वेलरी बाजार में बैठा, जब लोगों को बोलता था एक दिन ऐसा आएगा कि हमारी ज्वेलरी हवा में भी थी, लिटरली में चाटे में खाए। My father used to hit me. पागल के दादा करने के लिए प्रॉब्लम होता है। कुछ भी बोलना शुरू हो जाते हैं। फिर
लेडीज जेंट्स को थोड़ा डराने की भी कोशिश करता है। एक दिन ऐसा आएगा बेटा तेरी बीवी को पता चलेगा तो किधर है, तो वो कहता है और पागल हो गया बिना ये कुछ भी पूछे। वो 25 साल पहले जो मैं बोलता था, आज हस्बैंड था अभी पहला बोली ऐड डाल दिए कहते हैं मोबाइल के अंदर लोकेशन प्लेस होते हैं, हमारा राइट ज्यादा करके हस्बैंड से इसलिए बताऊं प्लस द टोटल सिनेरियो स्टेट्स हम इनोवेशन लाते हैं कोई अच्छी चीज करें। इंटरनेट जब आया था इन द ईयर 94-95 इट वाज अ डायरेक्ट सर्विसेज, बहुत लोगों ने देखा होगा और हमारा ध्यान कम्युनिकेशन पे काम होता था, बिलिंग पे ज्यादा होता। इतना टाइम को चल रहा है उतना बिलिंग आता। फ्रॉम दैट एरा टुडे अनलिमिटेड वर्सेस। तो जब अच्छी चीज आई उसकी अच्छी करते 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 टुडे वी इन द बैड फेस बिकॉज टेक्नोलॉजी ऐसी चीज होगी हम आधा पढ़ते हैं। मोबाइल आ गया, अब सोशल मीडिया आ गई, अपना काम हो रहा है ना बस खत्म। तो वी डोंट गो टू द डेप्थ ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट कि क्यों है, इसका नेगेटिव क्या हो सकता है। बट आज टेक्नोलॉजी जैसे हमारे हाथ में है वैसे क्रिमिनल्स के हाथ में है। नाउ फिजिकल क्राइम इज टोटली वैनिश्ड। अगर मुझे किसी के साथ पहले होता था अगर कोई बैंक डकैती डालनी होती थी, अगर आप लोगों ने मूवीज में देखा होती, मैंने तो प्रैक्टिकली भी देखे, अगर एक बैंक लूटना होता तो कम से कम 5 ईयर प्लानिंग चलती थी। पहले तो बैंक की नीति करो, कैश कब आता है कैश कब जाता है, पुलिस वैन कब आती है, सिक्योरिटी कितने हैं, कस्टमर्स मूवमेंट इतने लेती होती। और आज बाथरूम में बैठे बैठे तो बैंक सामने पता नहीं चलता है कब अंदर बाथरूम में बैठा कर क्या है। और पहले क्रिमिनल्स का एक मुखौटा होता था कि यही बंदे क्रिमिनल्स होंगे। टुडे वी डोंट नो द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू यू इज आल्सो क्रिमिनल because he's got a tool that is known as a mobile phone, and we don't know what is there in his particular gadget and what is his intention sitting next to me. Everyone has a grudge today. सबको लेटेस्ट सेंसर चाहिए, सबको आगे कुछ ना कुछ करना है, but at the cost of someone else's loss. ये हमारा एजुकेशन सिस्टम है आज की तरह। I'm sorry to say that because हम सब आधी चीज पढ़ते हैं। Now अभी मुझे मेरा जो टॉपिक दिया गया है because you all are professionals, मुझे आप लोगों को समझाने की जरूरत है व्हाट इज साइबर क्राइम्स। डू आई नो? तो मैं आप लोगों को मेरा प्रश्न क्या रहता है, मेरे को जो जानकारी हो तो मुझे पता ही है, मैं तो वो बताने तो आप लोगों को नहीं पता। ज्यादा करके जैसे साइबर क्राइम सुनते क्या दिमाग में आता है? Cyber as a tool, to others, to cheat others. I think that as a तो नुकसान क्या है आप लोगों को? क्या अगर ये अगर आपको लगता है सुबह उठते ही कि मैं विक्टिम बन सकता हूँ या बन सकती है, तो आपके दिमाग में क्या आता है? किस चीज के विक्टिमाइजेशन, किस चीज का डर लगता है आपको? cyber attack. तो अटैक करके आपके पास से लेके क्या जाए? आपके पास है क्या वो लेके जाएंगे? बैंक का अकाउंट, because मेरे एक्सपेक्टेशन यही था लोगों से आंसर नहीं, because अटैक नंबर्स पे कहते हैं सर बोलिएगा। सब कितने लोगों ने अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड कोई भी सोशल मीडिया पे शेयर नहीं किया, नहीं किए, किसको दिए ही नहीं। सोशल मीडिया में किए अब कितना हाल पर अच्छे बात और नीचे क्योंकि आपका भी आधा मतलब जरूर हो नॉट कंफर्म, ये तो देखेंगे तो मेरा हाथ पर है ये क्या है? सबने दिया फराज बोलते मेरा डेटा, माय डेटा इज मोर इंपॉर्टेंट। सो व्हाट इज योर डेटा फर्स्ट ऑफ ऑल? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेटा? डेटा क्या चीज है? बिकॉज़ ये मुझे पता था आज की तारीख में, बिकॉज़ मैं देख रहा हूं मैं 25-30 साल पहले जब बोलता था लोग सुनते थे, कॉपी पीने चले जाते थे और टाइम पास के साथ जो बेचारे बैठे हुए आगे बैठते हैं वो लोग बैठते थे, तो बुलाया गया है तो टू बी रिस्पेक्ट को बैठते थे, बाकी के पीछे से गायब हो जाते थे। आज उल्टा होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि अभी आज 5 साल में इतने एक्सपर्ट पैदा हो गए। मेरे पहले होते थे हर घर में सीए मिले, तो मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से बता दूं मेरे खुद के खानदान में 72 सीए फ्रॉम माय इन-लॉ साइड। पूरे एकेडमी को तो मेंबर्स की जरूरत नहीं, चक्कर बना सकते हैं। 72 एक भी गरीब वकील नहीं बना।
मैंने वो बैरियर तोड़ा, वकील बना, फिर मेरे दोनों बच्चों को वकील बनाया, मेरे भतीजों को वकील बनाया, बहू को सीधे डॉक्टर, उसको वकील बना, बोला कंपटीशन करेंगे। क्यों? Because why? You people play with figures. You are before you get, we are after you get. Ultimately, 75% of the crime, any crime, is for finance. Is related to monetary. Right? अभी इतने एक्सपर्ट्स पैदा हो गए कि हर आगे एक स्पीकर है, I see on LinkedIn, Instagram, साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम, जिसको देखो ये 5 साल पहले बंदे को कुछ नहीं पता, लेकिन उसकी एक्सपर्टीज हमें कहाँ पता चलती है, when we are in the battlefield, that is code. आप गूगल देख के कुछ भी बोल सकते हो, डूज एंड डोंट्स मुझे समझाने की जरूरत ही नहीं आपको, एवरीवन नोज व्हाट इज दैट टुडे, ये मत करो, ये मत करो, और फ्री के एड्रेस इंडिया में बहुत मिलती है, जरूरत ही नहीं है, कंसल्टेंसी फीस यहाँ नहीं मिलती, एवरीवन गेट्स फ्री कंसल्टेंसी, बट एक्चुअल सॉल्यूशन नो वन नोज, वी कम टू नो बिकॉज़ वी फाइट एट द कोर्ट, और कोर्ट में डिफेंस की होता है, so we come to know the provisions, the lacunas, the loopholes, और उसको इतना टाइम लगता है जब एक्सपर्ट बंदा उसके अंदर, तो अभी ये सबसे बड़ा है कि हम डेटा का डेफिनेशन आज तक कोई डिस्क्राइब नहीं कर सकता, कोई बात डिस्क्राइब। फॉर एग्जांपल, आपके हिसाब से सर डेटा क्या है? All information is data. ऑल इंफॉर्मेशन इज डेटा, ओके, सर आपके हिसाब से इतने साइलेंट क्यों हो? अभी 2 मिनट वाले तो सब फिगर पे देखो, क्वेश्चन आंसर आते हैं सब बड़े हो जाते हैं, लिस्ट आपका आगे आप ही बोल रहे हो, और पैसा रिलीज से सेकंड जो डेटा, तो डेटा क्या है? information है, इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट? Financial information, that is your bank balance, Yes. right? That is your data. Assets and liabilities. Assets and liabilities, that is your balance sheet. Yes, So easily available. कहीं से भी मिल सकती है, तो आपका डेटा तो हुआ ही नहीं, सब पब्लिक डेटा, और Investments, policies. वो सब बैलेंस शीट में आ गई, अगर नंबर ना है तो अंडर द टेबल का तो सॉरी, दैट इज गुड डेटा जो लीक नहीं हुई बात, योर पासवर्ड, ओके, और कोई ये सब रिलेटेड है बाय द कोड, कोड डजंट एक्सेप्ट दिस डेफिनेशंस, केवाईसी, आपका घर खाली पैन नंबर डालो तो सारा केवाईसी इधर दिख जाएगा, सब कुछ आएगा, बात किसी को देने की भी जरूरत नहीं है, तो इट्स पब्लिक डेटा, सो वेयर इज योर डेटा, व्हाई आर यू वरीड सो मच, सब कुछ तो हमारा ऑनलाइन है, मेडिकल इंफॉर्मेशन, जब कोविड आया था एक ऐप डाउनलोड किया था, हर चीज बाहर आज भी आप पैथोलॉजी में चले जाओ, रिपोर्ट आती है, उससे पहले तो कॉल आ जाते हैं आपको मार्केटिंग की, तो वेयर इज दैट डेटा? There is no secrecy, there is no privacy, right? And it's not only over in India, it's everywhere, because we have been ruled by 12 people in the world, जिसके हम गुलाम बन चुके हैं। I don't want to name them, पता नहीं बाहर जाते मैं रहूंगा नहीं रहूंगा, I am also being watched, मेरा भी मोबाइल यहाँ पड़ा है, it's always in a recording photo, we don't know कहाँ जाते हैं, जैसे एग्जाम्पल I don't know in Dubai also, 15 days I'm in Dubai, Abu Dhabi, 15 days I'm over here, I'm not returning for Dubai please, तो जब वोटिंग करके गया है वहाँ व्हाट्सएप कॉल्स नहीं चलते, लेकिन मैं जो बताऊँ वो सब चीजों को पता चलती है, because motive is always 24 hours recording, this is where the government is watching, I cannot utter a word in the nature of it, or against any person who is based in Dubai, who is having American card. This is the restrictions. Everything is automatically connected. I don't need to prove innocence, it is already there. The same thing, the social media apps, जो apps आप लोग डाउनलोड करते हो, they are the same thing. आपको कुछ देने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली आ गए। अभी 70% कितने लोग यहाँ व्हाट्सएप यूज करते हैं? कितने लोग व्हाट्सएप का पेमेंट व्हाट्सएप कोई और बात करेगी जो इतने सारे नहीं करते, पर आप उसको मेरा डेटा कॉम्प्रोमाइज होता है, पहले तो फ्री वर्जन यूज करना बंद करो, वो आदत डालो, पेड वर्जन यूज करो, ट्रू कॉल
केक भी मतलब यूज नहीं करता है अभी वो पेट भी मतलब पेट ही हो गया ना नहीं पेट कैसे होगा पेट कर लो आप फ्री सर्विस बंद की है तो दोनों चालू प्रीमियम के लिए आईफोन में बंद हुआ है इसका अभी सर प्रीमियम सर एक क्वेश्चन मुझे तो एक दिन आईफोन वाला 100% ठोक के जाएगा क्योंकि सब लोग यही बोलते हैं आईफोन कितनों के पास है उसके नाम पे पहली लोग की दुनिया है थी मैं तो बहुत बार जेलस भी होता हूँ काश मैं भी ये पढ़ा होता मैं भी बिकॉज में खेलता हमको तो मांगने नहीं पड़ते एक क्लाइंट देगा 15 साल तक उसको देखना है खत्म ही नहीं होता नया चेहरा ही नहीं आता हमारे पास और फीस भी रो पे देता सर मैं तो ऐसे ही समझता हूँ क्या दूर आपको सर हमारे पास तो सामने से आते ही ना हम तो सामने से अकेला जाते हैं ले भैया हमारी गोली देख लो फिर आपका फिक्र चलता है तो आईफोन सबके पास मेरे हिसाब से 90% आईफोन गरीबों का फोन किसका होगा गरीबों का मेरे एंड्रॉइड मैं आईफोन नहीं यूज करता हूँ मैं गरीबों का हूँ अभी जो अभी लोग फोन वाले किसी को सर आपके पास आईफोन आईफोन सर आईफोन ही क्यों खरीदा जबकि मेरे पास भी गरीबों का फोन पर आपके फोन से महंगा है मेरा फोन तो आपका सैमसंग क्यों यही डेटा सिक्योरिटी and if you don't mind if you just give me a number I'll break your security and show it everywhere if you permit me ये पास कर दिया बात करने में तो आपको तो दिया होगा कैमरा बंद के फायदा होगा सब लोग इतना बंद है तुमने का आईफोन चाहिए आप लोगों के पास इट्स अ जोक क्यों भाई गाय ओनली ट्राइपॉड बोल तो वही और तो आपने से वो मिला होगा वो क्यों वही क्यों आईफोन है यूजिंग फॉर स्टोरेज आईफोन फॉर फोटोग्राफी पैकेट पूरी है तो सर उसमें कैमरा आ जाता है कैमरा भी इनको मैं क्या बोलूं गरीब को भी लग गया अंकल को भी लग गया घर वाली दोनों लगी हुई तो सोचने से बन गया दो बार वाली है अभी वो मैं नहीं बोल सकता यार मैं अकेला हूँ the perception that iPhone is difficult to hack. ओके परसेप्शन का आप कुछ करोगे इंडियंस को स्पेसिफिकली वो भी परसेप्शन के लिए समझने वाली वो बजा के पूरा फैमिली कंपनी ने वो बनाया हुआ ब्रांड ने वो परसेप्शन बनाया सर हम लोगों ने बनाया उसको ब्रांड हमने the maximum users of iPhones are in India specifically the younger generation अभी एक चीज मैं हर जगह पे जाके बोलता हूँ सबसे महंगी गाड़ी एक जमाने में कौन सी कहती थी एक पर्टिकुलर लोगो था मर्सिडीज मर्सिडीज में बैठता हूँ तो एक शान थी 3 साल पहले सबसे ज्यादा एक्सीडेंट कौन सी गाड़ी that also dead being the one of the topmost car and that also result was death the same thing is with the gadgets हम सिर्फ स्टेटस सिंबल के लिए यूज करते हैं हमें पता ही नहीं है अंदर है क्या फीचर क्या अंदर क्यों लेना है मुझे बट या द क्रिमिनल्स नो ऑल दिस दे नो आप क्या यूज कर रहे हो आपकी मेंटालिटी क्या है और ये सोशल बिहेवियर जैसे आपकी फाइनेंशियल रिपोर्ट आप पूरी शेयर करते हो ना जैसे आप आपके बारे में हर चीज एवरी मिनट क्रिमिनल्स को बताते हो हु यू आर व्हाट इज योर मेंटालिटी व्हाट आर यू थिंकिंग ये सारी चीजें बताते हो एज फॉर दैट दे स्टार्ट एक्टिंग एंड आई टेल यू to enter any gadget, whether it's an iPhone or it's an Android, it's very easy. To enter into your house. आपके घर में घुसने का बाद मैं कहता हूँ सर, अब आपके घर में घुस कैसे सकते हैं? कैसे घुस सकते हैं? फ्री एप्लीकेशंस यूज करते हैं Yes, one point is that. दूसरा, हमारे पास we are the only country which has unlimited data plans. उसके बावजूद मैंने तो टूर्स में भी देखे जैसे होटल में चेक इन करते हैं हम तो बाद में नहीं गए सब दिस जीरो वाईफाई तो तेरा अनलिमिटेड प्लान है फिर भी वाईफाई क्यों देखो मेंटलिटी वेबसाइट पूछती है मेंटलिटी सेट करके ही आए हैं 10 साल पहले की मेंटालिटी पहले
इतना डिफिकल्ट था 4 GB 5 आज GB ये आपकी जनरेशन जिन्होंने 10 साल नहीं देखा कोई आज यही काम है फॉलो द लीडर वाईफाई का लोगो है और आज के टाइम में सारी होटल्स दे डोंट गिव यू प्रोटेक्टेड वाईफाई दे गिव यू ओपन वाईफाई जैसे आई एम एन एथिकल हैकर तो आई गॉट इंस्टीट्यूट में आई टीच हाउ टू एंटर इनटू सिस्टम्स एंड ऑल दोस थिंग्स बिकॉज़ मैंने भी सीखा है कोई कोर्स नहीं किया मैंने मेरे ही क्लाइंट को सीखा My clients are of both the sides. We are on the both the sides. But complainant as well as accused. Accused हमारे पास में मिलेंगे hackers, black hat hackers को भी. उनसे शिकायत कैसे किसी के सिस्टम में घुसा जाता है. सबसे पहला रूट होता है हमारा राउटर, which is Wi-Fi. एयरपोर्ट पे बैठे बैठे 10 लोगों के सिस्टम में घुसता हूँ. Every day. फिर कल रात को आया मुंबई से. फिर yesterday मॉर्निंग और टाइम पास करने 2 घंटे पहले पहुंच गए लोग करें क्या लैपटॉप लेके नहीं खोलते क्योंकि हमारे पास काम ही नहीं हमारे जिनके लैपटॉप बंद हो गए उसके बाद काम शुरू हो गए तो फिर काम ही नहीं है जिसको जो लैपटॉप को उधर उधर करते हैं हम मोबाइल खोलते देखते हैं भाई बात अभी बोली कौन है देखते और ऐसी ऐसी चीजें देखने से बहुत मजा आता है ऐसी ऐसी चीजें तो कभी कभार मुझे तो ब्लैकमेल शुरू हो बाजू वाले को कहा सर लाइक व्हाट इज देयर इन योर चैट्स forget it it's violation of privacy someone is watching me also that's the case but I'm just having knowledge what is he doing I don't know I'm not a criminal mindset but it's so easy अगर मैं आप लोगों को सिखा दूं ना तो एक गेम बन जाएगा आप लोगों के लिए घर पे जाते जाते it's so easy to enter into anyone's gadgets इसमें कोई टेक्नोलॉजी सीखने की जरूरत नहीं कोई कोडिंग नहीं है it's purely application based इसके लिए जितना हैकर्स होते हैं ना वो 7 to 12 पास from the age group of 12 to 25 आप देखो जितने भी आप लोगों को सबको कॉल जाते होंगे करेक्ट उन लोगों को अगर आप पर्सनली देखोगे ना तो इसको इंग्लिश क्या इसको हिंदी में नहीं आती बट जब वो फोन करते तो फिर ही स्पीक्स इंग्लिश यू कैन नॉट इमेजिन बिकॉज़ वो नहीं बोल रहा है इट इज द सिस्टम व्हिच इज स्पीकिंग वो अपनी रिकॉर्ड आवाज में रिकॉर्डिंग करके छोड़ देता है फिर सॉफ्टवेयर उसको कन्वर्ट करता है और आपके साथ बात करता है एंड यू फील नहीं व्हाट द ऑपोजिट पर्सन इज सो लर्नड It's a machine which speaks with you. ये सारी चीजें कॉमन हो चुकी है इसके लिए यंगस्टर्स और अनपढ़ लोगों को सिखाया जाता है ऑपरेशंस और टारगेट कौन होते हैं पढ़े लिखे मेरे क्लाइंटल लिस्ट में आई विल हैव मोर देन 2000 क्लाइंट्स उसमें हार्डली 5 या 6 पॉवर्टी लाइन वाले बाकी सारे पोस्ट ग्रेजुएट्स हाई प्रोफाइल मतलब मेरा तो कोई मैच ही नहीं होता बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स हैं बिकॉज सबसे प्रॉब्लमेटिक प्रॉब्लम है पढ़े लिखो का टाइम नहीं वक्त नहीं they say I don't believe in gossip I don't have time but जब किसी का कॉल आता है ऑपोजिट जेंडर का टाइम ही टाइम I don't know why कोई बोलेगा सर आई एम कॉलिंग फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया सर क्रेडिट कार्ड ओह नो मैडम ओह इतना डिस्कस करेंगे जैसे उसे रोज रात को मिल गया इतना टाइम पास करे बाद में लास्ट बोलेगा मैडम कॉल भी लेकर हम भी बोलते कॉल भी लेकर अरे डिस्कनेक्ट कर देना भाई तेरा इंटरेस्ट नहीं है ना you don't want a credit card disconnect it but that matter that report goes to some other caller ये बंदा टाइम पास वाला है ये बकरा बनेगा और वो बकरे बनते हैं frankly the more you do time pass the more you are entering into being a victim तो जो काम की चीज नहीं है उसको डिस्कनेक्ट करो इमीडिएटली टाइम पास मत करो वो सुरीली आवाज आपकी नहीं होने वाली और गारंटी के सामने कौन है आपने कोई पिक्चर देखा हो तो पिक्चर आया था I don't know the name of the actor. He becomes a woman and he speaks on a telephone. आयुष्मान खुराना करेक्ट ये पहले आज के वाले व्हाट्सएप आने से पहले पेट फ्रेंड सिस्टम होते थे पेट फ्रेंड्स हमारे एरिया वाले बहुत है लोगों ने कोशिश भी की होगी अपने लोगों ने भी की है दोस्त बनाए इंटरनेशनल दोस्त बनाए गर्व के जैसे आज आप लोग स्टेटस करके फोन उल्टा रख के बात करते ना हम लोग पेट भेजिए फ्रेंड है ऑस्ट्रेलिया में तो पीपल तो बाकी लड़के हमारे मेरी दोस्त है ऑस्ट्रेलिया में पर उसको कनेक्ट कैसे करते थे बीच राइट लेटर पेट फ्रेंड करके उसको लेटर बुक आती थी पूरी डेटाबेस की बुक आती थी उसमें से चूज करते थे कौन सा नाम अच्छा लगता है फोटो तो होते ही है कौन सा नाम अच्छा लगता है और नाम के साथ वो लेटर भेजते तो द सेम थिंग इज हैपनिंग टुडे तो जितनी भी डेटाबेस आपके पास होता है वो सब बाहर है अभी कहा मैं इसलिए आई हूं फॉर एडवर्टाइजमेंट बिकॉज we download unwanted things the criminals penetrate through that just say we
बहुत से लोगों को पता भी नहीं ऑटो डाउनलोड कौन होता है। ऑटो डाउनलोड जैसे कि व्हाट्सएप पे अगर किसी ने कुछ भेजा वो अपने आप गैलरी में सेव हो गए, और ये सारे होते हैं मास्क लेयर्स, इमेज अंडर एन इमेज। तो अगर किसी ने अभी जैसे मान लीजिए आपके सीटी के आसपास कोई इन्विटेशन है, आपका ऑटो डाउनलोड है, अभी उसके अंदर सपोज मैंने कुछ मास्क मैनुअल डाला हो तो आपके सिस्टम में आके बैठ जाए, आपको पता भी नहीं चले, बिकॉज आपने तो सीटी का डाउनलोड किया, मतलब डाउनलोड हो गया। अब जो उसके अंदर टाइमर होता है 3 आवर्स 4 आवर्स, 4 घंटे बाद वो मैनुअल एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाएगा और आपका फोन क्लोन हो जाएगा। दैट मीन्स द पर्सन हु सेंड द मैनुअल कैन सी योर फोन। आप जो हरकत करते हो सब मेरे पास आएगी, आपके व्हाट्सएप चैट्स, आपके सोशल मीडिया, आपके कॉन्टैक्ट्स, आपके लोकेशन, आपके बैंक बैलेंसेस, आपके एप्लीकेशंस, आपके पासवर्ड्स, बिकॉज इट्स अ क्लोन्ड वर्जन। तो मुझे आपसे लेने की जरूरत क्या है, मैं ऑलरेडी आपको भी मुझे सब कुछ दे चुके हो। अब ये अगर होता है and then you are a victim and it comes to your knowledge and you run to the police, आपको कुछ नहीं बोलेगा हाँ ठीक है, because this is not crime, this is negligence. And any court of law, negligence is not accepted, so you will not get justice. इसके लिए 75% क्रिमिनल्स आपको मैनुअल भेजते हैं जिसकी वजह से आप खुद वो डाउनलोड करके बैठते हो and you don't get a protection of law. तो इसके लिए सबसे पहले ऑटो डाउनलोड बंद कर दो, कोई जरूरत नहीं है, आप सिलेक्ट करो कौन सा इमेज या कौन सा ऑडियो फाइल आपको चाहिए, और उसके बाद गैलरी उसके अंदर जितनी चीजें नहीं चाहिए उसको इरेज करो, डोंट डिलीट इट, डिलीट इट परमानेंटली, डोंट कीप इट बिकॉज़ इट गोस टू योर रैम। आप गैलरी से निकाल दो, रैम के अंदर अगर होगा वो वापस एक्सेस हो सकता है, मैनुअल एक्टिवेट्स। तो ये सारी चीजें होती है जिसकी वजह से आपका डेटा बाहर जाता है और क्रिमिनल्स को आपकी सारी इंफॉर्मेशन मिलती है एंड दे एक्ट एज पर दैट। अभी जो एक माहौल चल रहा है दैट इज डिजिटल अरेस्ट, सुना है? नहीं, यहाँ पे तो वही माहौल है, इंटरनेशनल तो बहुत अलग चीजें चल रही है, जैसे ह्यूमनॉइड्स, बिकॉज़ आई एम अ रिसर्चर, तो आई एम ऑलरेडी इंटरेक्टिंग विद ह्यूमंस, ट्रांस ह्यूमंस आने वाले हैं, व्हिच इज अ डिजास्टर टू द ह्यूमैनिटी। जो आप देखेंगे तो आप सोच भी नहीं सकते हो, थोड़ी देर बाद होता है। तो ट्रांसह्यूमंस which are going to come into our systems, आप सोच भी नहीं सकते हो। जब मेरे जाने के बाद अगर आप गूगल करोगे व्हाट ट्रांस विल कम टू नो, डिजास्टर्स आर जस्ट ऑन द वे। ये हम जो अभी एक प्रेजेंट क्राइम और जो बढ़ रहे तो चुटकुले, नथिंग, द यूएई वॉर, मतलब सॉरी द गल्फ वॉर, इतने लोगों ने पता नहीं, खाली आज तक और वो सब चैनल देख कर लोग उसको कुछ भी यूज नहीं है। If you really go to the CNN and BBC and all, you have seen that was just a eyelash. Besides taking a drone, that was just an eyewash. It was actually a cyber war. You just see that. Modi ji also told 3 years back that will be war now without that. अपना इंडिया पाकिस्तान का भी वॉर हुआ था लास्ट ईयर, इट वाज आल्सो अ साइबर वॉर। किस तरीके से हवा में अभी अर्चित करने वाले, और जब वॉर भी वैसा होगा तो आप सोचिए आगे हम क्या करेंगे। इट इज अ फैक्ट। नाउ वी रॉबर्ट जैसे डिजिटल अरेस्ट का सबसे पहले, इट्स अ पुराना क्राइम आप बोल रहे, राइट? कितने लोगों ने फेस किया डिजिटल अरेस्ट, और हाँ सर क्या हुआ आपको विक्टिम हो? ओके, सबसे पहले प्लीज डोंट लाफ एट एनी विक्टिम्स, बिकॉज ये कोविड जैसी हालत है। मैं हर जगह हर इसमें बोलता हूँ, फर्स्ट पेज जब आएगा कोविड का, आई एम सॉरी टू से यंगस्टर्स यू शुड लाफ एट सीनियर्स। मास्क पहनो, वैक्सीन लगाओ, बाहर मत जाना पापा, 60+ डायबिटीज है, घर में रहो, और खुद बाहर जाते कोई बात। सेकेंड वे we didn't see the youngsters because they have lower confidence. कि मुझे नहीं होगा, और आप देखा मेरे बाजू वाले नेबर बिस्लरी पानी तक की नल का नहीं पीते, बिस्लरी आते, इतना डर के बैठा हुआ था, मेरे तक तो 3 महीना भाई भी निकला, उसके घर में सबको कोविड और हम तो जिम्मेदार हमारे को नहीं। So it's a fear, डर की वजह से सारा आधा इफेक्ट होता है। तो डिजिटल अरेस्ट, स्टॉक मार्केट स्कैम्स,
जॉब स्टैंड, एमजीएल स्टैंड, ये सारा डर का ही माहौल है। तो डिजिटल अरेस्ट सबसे प्रॉब्लम है, पीपल से मेरे साथ नहीं होगा, आई एम एजुकेटेड, मुझे सारी अवेयरनेस है, एंड आई सी एनीवन इन दिस रूम कैन बी अफेक्टेड आफ्टर गोइंग फ्रॉम हियर। एनी आपको कितना ही डर, बिकॉज आई हैव क्लाइंट्स हु आर आईपीएस ऑफिसर्स जो डिजिटली अरेस्ट हुए, रिटायर्ड हाईकोर्ट जजेस, आरबीआई गवर्नर्स, मेरी खुद की जूनियर who is also an advocate practicing with me from past 8 years, she was under arrest for 17 days and she paid 21 lakhs. So don't be overconfident कि मेरे साथ नहीं हो सकता है, because you don't know yourself, the criminal knows you very well, knows you very well. और इस तरीके से आपको mesmerize कर दिया जाएगा, you will believe whatever they say. कितने लोगों ने गेम का नाम सुना, ब्लू व्हेल? करेक्ट। आपके बच्चों को आपको खेलने देंगे, क्यों ऐसा क्या ऑप्शन है जो नहीं खेलने देंगे? टास्क तो गेम का एक फॉर्मेट होता है, और समथिंग और यूज इट, आपने कभी यूज किया? यू रेड इट, दैट्स वेरी गुड, बट यू विल नॉट वेरीफाई। करेक्ट। और फिर एक और आया है जो सिग्नल पे जाके घूमते हैं, रेलवे ट्रैक से जाके घूमना शुरू कर देते हैं, पोकेमैन। क्यों बैन कर दिया वो? ऐसा क्या है, पैसा तो नहीं जा रहा है, कोई भी बैन करने की जरूरत क्या होगी? एडिक्शन इस सोशल मीडिया नॉट एन एडिक्शन। सुबह मैं तो इतने लोगों को देखो, रात को सोने के बाद और उठने से पहले भी वो मोबाइल देखते हैं, सोने के बाद उठने के पहले, नींद में भी नींद घूमती है उनको। जैसे कोई मैसेज आया, ऐसे लगे पापा बिना भी बुलाए नहीं उठेगा, मैसेज आया फट करके पहले मोबाइल के दर्शन करेगा, जैसे मोदी जी उसको मैसेज क्लास दे रहे। बाथरूम में भी जाना है रात को 2 बजे, मोबाइल लेके जाएगा सब। ऐसा क्या है कि मोबाइल लेके जाएंगे, भले वो अच्छी चीजें होंगी, उसको मोबाइल कोई गंदी चीज नहीं होगी, फिर भी he will take his mobile and go to the washroom. Why? Because trust. The trust factor is vanishing away in your families. एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते, बच्चा पेरेंट्स पे नहीं करता है, हस्बैंड बीवी पे नहीं करता है, बीवी हस्बैंड पे नहीं करती है, और ऐसे बोले जान तो मेरे ही 7 जन्म मिले तू मिले। डायग्राम बाहर अलग होते, बच्चा मोबाइल आता है, अगर हस्बैंड ने बोल दिया वाइफ को प्लीज गिव योर पासवर्ड, क्यों? सीधा आईब्रोज रिलेटेड, क्यों? The same thing the husband answers. Trust factor खत्म। और जब वहां पे आप इंस्टाग्राम पे किसी पे मेरे भरोसा करेंगे, फेसबुक पे करेंगे, देखिए हमारे बाजू में जो बैठा है, जिनके साथ हम सुबह शाम बैठे हैं, उस पर भरोसा नहीं करेंगे, बिकॉज हमारी चाहत कुछ और बन चुकी है, हमारा वे ऑफ ऑपरेशन हैव चेंज्ड। दिस इज द प्रॉब्लम वेयर क्रिमिनल्स वेरीफाई यू, दे चेस यू एंड दे रिट्रैप यू। I'll give you live examples now. Digital arrest में सबसे पहले प्रॉब्लम होता है, they verify your credentials. आप कौन हो, आपके ऊपर क्या क्या चल रहा है, क्या केसेस चल रहे हैं, या आपने कोई गलती की है लाइफ में, या आप किसी से डरते हो, या आप में ग्रीडीनेस बहुत है। अब ये सारी चीजें होमवर्क अगर मैं बोलूं मेरे बारे में करो, कितने टाइम में कर सकेंगे आप? दिस पर्टिकुलर फैक्टर्स आर देयर इन योर, आप सीखेंगे तो एक दिन मैं सिखाऊं। सर सिखाने का है, आपने मेरे को सिर्फ ज्ञान देने को बुलाया, सिखाने के लिए हमारे ऑफिस इज ओपन, आई एक्सेप्ट पेटीएम वॉलेट्स, और गारंटी आज तो कभी भी लोगे, आपको पता नहीं कितना देते, मेरी खाली $1300 मुझे ज्यादा ही नहीं या तो आई चार्ज वेरी ₹3 में मेरा बैंक बैलेंस एक्सेप्ट नहीं होता है। आई डोंट नीड क्रिप्टो करेंसी, आई चेज क्रिप्टोस, जो क्रिप्टो इन्वेस्ट करते हैं उसको अरेस्ट करना, वहां से $1300 I'll tell you right now on that topic also, because आपको फाइनेंशियल मार्केट 100% तो होगा ही 100%। तो डिजिटल अरेस्टेशन, तो बिकॉज नाउ ऑल दिस इंफॉर्मेशन स्टडी करने की जरूरत है, मेरा मोबाइल खुद मेरे बारे में क्रिमिनल को दे देता है, मेरा बिहेवियर सबसे पहले मैं कितनी टाइम बैठा हूँ, कितनी बार मैं मोबाइल हाथ में पकड़ता हूँ, माय बॉडी टेम्परेचर ऑल्सो इज अ डेटा, दैट इज एक्चुअल डेटा। हम बोलते हैं हमारा डेटा केवाईसी, हमारा बैंक बैलेंस, नो, क्रिमिनल नॉट इंटरेस्टेड इन दैट,
वैसे भी अवेलेबल है. The data which I want is your brain mapping. या बॉडी जैसे अभी आज का क्वेश्चन बन गया है, शरीर लेके बैठना है. सर हार्ट अटैक कब आएगा पता चलता है. मेरा ब्लड प्रेशर कब पता चल जाएगा, मेरा शुगर लेवल कब पता चल जाएगा. That is your which the renal response. And then they understand. अगर आपके पास बीपी है, ये बीपी का पेशेंट है, इसको ऐसी चीजें बोलो, ऐसी चीजें दिया जाओ जिससे बीपी शूट अप हो जाए, and it becomes hyper and he obeys. डायबिटीज है तो शुगर लेवल कम करो. हाइपरसेंसिटिव है, इस साल दिस इज योर बिहेवियर व्हिच द क्रिमिनल्स वांट. और हम कब देते हैं, तो हमसे वो गैजेट छूटता नहीं आंख से. 24 घंटे आपको गैजेट लेके घूमते हैं. So that is where we pass on our information. So digital harassment, a person suddenly calls you on your social media, और एक ऑफिसर बनके कॉल करते हैं. Do I need to subscribe? How does it happen? तो पता है, अभी तो गवर्नमेंट ने कहा किया है. करेक्ट. इसके बावजूद मैं गारंटी देता हूँ, बिकॉज मेरे पास भी एक ऑफिसर था, who was detecting my case. मेरे क्लाइंट का केस डिटेक्ट करना, वो खुद 3 दिन डिजिटल अरेस्ट था. I was shocked, but मेरे लिए तो नहीं मानती, because I know ये कैसे होता है. ऑफिसर को बोलता है, साहब मी कसं जाणू, मी तुमच्याच केस इन्व्हेस्टिगेट करतो. मी स्वतः 3, you understand? मी स्वतः 3 दिवसासाठी, आणि ही पेड मला हाफ लाईक्स. ही पेड मला हाफ लाईक्स. सर तुमची गलती नाही आहे, की आम्हाला माहिती आहे कसं होतं. तर साहेब आम्हाला ट्रेनिंग द्या कसं, म्हणजे तुम्ही पोहोचू शकणार नाही त्यापर्यंत. It's impossible you can reach over because the infrastructure is not providing you. Second, you don't have permissions where you can investigate that things. You are restricted. That's why you are target. Now this happens because of your brain mapping. They immediately target you, and within 45 seconds, 50 seconds, you are under their control. It is known as indirectly अगर Indian भाषा में बोले तो hypnosis. It is known as cyber hypnosis. But क्या ये hypnotism word use करते हैं ना, तो थोड़े लोग रिटायरिंग करते हैं. Then I use it in English word अच्छा लगता है. गाली English में तो क्या सुहानी लगते हैं. वो हिंदी में तो मारने को आए. Yes sir. Hypnotism, I-2-I content is required. No sir, now voice also is sufficient. Voice is sufficient. So that's so we use the word brain mapping. So वो अच्छा लगता है तुमको. Yes, brain mapping is a word we accepted. But वो hypnotism में करना तो no ऐसा होता ही नहीं है कभी. So जैसे ही आपका brain map हो गया, now whatever command they give, जैसे वो gates के जो बच्चों को बोलते हैं now jump, and they jump from the floor. अभी एक और गेम है जो यूएस में बैन कर दिया गया है, जैसा कि इंडिया के कुछ पार्ट्स में ऑलरेडी है. नाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट बेसिकली गेमिंग एक्ट लाया गया जस्ट 4 months बैक. ये गेमिंग को टोटली बैन कर दिया. वो गेम इस तरीके से है, देयर आर लेयर्स. थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, द लास्ट. थर्ड लेयर तक जब आदमी पहुंचता है तो उसको दूसरा टास्क दिया जाता है. When you if you want to enter into the fourth layer, you have to kill 3 people from the third layer. You have to kill 3 people from the third layer. And physically, you have to take a photo of that particular person and upload it on the app. वो उसको लोकेशन दिया जाता है. Suppose I am a person who is going to enter into the fourth layer. मेरे को immediately मेरा मोबाइल लोकेशन देगा कि yes, the third layer person or fourth layer person is sitting over here. Second is sitting over there. I will go to over there without thinking. Immediately my enemies, I'll kill that person, take a photo. Yeah, तो layer 1 cross हो गया. फोर्थ लेयर का फर्स्ट स्टेप क्रॉस किया. ऐसे 3 लोगों को मारना और लास्ट में टू किल योरसेल्फ. और ये रियलिटी है सर, रियलिटी है. इस रियलिटी होता है. अब आप बताओ, अभी मैं आप लोगों को बोलूं राजपरी वालों को मारो, मारेंगे? सब ये नहीं ना. ये अगर मैं सबका ब्रेन मैप कर दूंगा मैं बोलूं किल एवरीवन हूएवर इज इन योर सेल्फ. फर्स्ट स्लैप यू विल डू इट बिकॉज़ योर माइंड इज नॉट इन योर कंट्रोल. What the persons behind it who did such things. And she तो ये इतना इजी होता. will challenge कर रही हो. There's a Now, because what we have is stable, our infrastructure doesn't provide us. Secondly, our law doesn't permit us. so you said about 12 things. 12 people. 12 people who are there's a new law order, world order. I'll talk to you now. That are come later. So this is where the digital arrest is also a part of the same thing, where the person mesmerizes you in such a way, आपको इतना डरा देता है कि आप उससे जो भी बोलो. और सबसे बड़ी चीज, अगर मैं समझो क्राइम करना चाहूंगा तो मैं ऑनलाइन ट्रांसफर मांगूंगा कि फिजिकल.
राइट, डिजिटल अरेस्ट पूरा होता है, वो फिजिकल ट्रांसफर मांगता है, आपको बैंक में भेजते हैं, गो टू योर बैंक, मतलब आपको घर से बैंक में जाने देते, और बैंक में जाकर आरटीजीएस चाहिए तो फॉर्म भरो, डोंट डू ऑनलाइन ट्रांसफर। आप सोचो पढ़ा लिखा आदमी अगर मैं वहां बोले हंसेंगे उसके ऊपर, अच्छा तेरे को कैद कर रूम में पड़ा हुआ, लेकिन जब तू बाहर गया तब तो चिल्ला सकता था, राइट, तब तो तू किसी को बता सकता था, but no, not a single person has reported that thing to anyone nearby or and not to the police or to the banker. He personally transfer, और एक दिन नहीं, 20-21 दिन और अरेस्ट होते, और द मेजर सबसे बड़ा अमाउंट कॉर्पोरेट over 30 करोड़ रुपए, 30 crores, 30 crores of retired director of a multinational company, he has paid. मेरे पास केसेस है करीबन 7 करोड़ के है, फिर 12 का है, फिर एक प्रिंसिपल है मेरा रोड की, उसने 2.5 करोड़ भरे इन डिजिटल अरेस्ट, प्रिंसिपल ऑफ स्कूल 2.5 करोड़, सबसे बड़े जगह पैसे आते हैं, मेरे को तो यही समझ में आता मैडम आया था कहाँ से, उस समय मेरे स्टॉक्स पड़े थे, और स्टॉक्स पड़े थे बिकॉज से व्हाट हैपेंस being the legal I have to know everything, I have to know, police doesn't ask all this stuff, police is just concerned with the crime. अब ये करके जब कोर्ट का अगर मैटर जाएगा, आपकी बैलेंस शीट मांगी जाएगी, सपोज एंड द डिफेंस लॉयर, तो सबसे पहले पूछूं मैडम आपकी बैलेंस शीट ऊपर, आपके पास अगर 2.5 करोड़ पड़े थे, कहाँ थे, was it declared income or undeclared income? प्लस अगर एफडीज थी तो एफडीज बैलेंस शीट में हाईलाइट क्यों नहीं की गई? सेकंडली, हाउ डिड यू ब्रेक द एफडी इमीडिएटली ट्रांसफर द मनी टू सम अदर, उसमें बैंकर को भी टास्क दिया जाता है, हाउ डिड यू ट्रांसफर द मनी टू बेनिफिशियरी हु इज nowhere related with the account holder? It is the banker, because now the investigation cells है, हर बैंक के अंदर every branch it is mandatory to have investigation cell, cyber investigation officer, जो मुश्किल के अंदर रैंक्स भी कर कॉस्ट, एक ही बंदे को पता है ये बोर्ड चेंज कर देते साइबर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, तो उसको नॉलेज जीरो, कॉस्ट कटिंग, बट उसको नॉलेज ही नहीं, तो इसके लिए वो क्रिमिनल उनको फिजिकली देखते हैं, सो दैट कल there is a witness, the CCTV as well as the person who is doing the transfer, ये सब बहुत समझ नहीं हमारे पास आए थे, और इन्होंने खुद ने ट्रांसफर किया, बैंक इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, दिस इज वेयर वी गो आवरसेल्व्स, और 20 दिन 21 दिन हम रहते हैं, और बता रहा हूँ पुलिस ऑफिसर, बैंकर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कितने मेरे पास, मेरा करीबन 3 महीने पहले अपने सीए इंस्टीट्यूट बीकेसी में था, लिटरली एक सीए भाई साहब थे, वो ही वाज सच अ सॉफ्ट पर्सन अराउंड 11 months or 12 months ago, he has turned himself into a violent person. उसकी भाई उसके बेटे मेरे पास देखे, मेरा लेक्चर था वो वहीं पे लेके आए, वहीं पे मैंने उनका रेटिंग किया, he was so violent he was going to hit me also, double percent, and he has taken a loan of 3.5 crore from all the CA members, 3.5 करोड़ का लोन लेके he has paid to the person who was demanding money. His behavior has changed, भाई बोलते बोला कि इसका ये किया है, लॉकअप खड़ा, वहीं है मैं he will from everything. And literally, I put it behind bars for 7 days, unofficially. No report, no FIR, unofficially 7 दिन, मतलब सुबह 6 बजे से लेकर बच्चा भी वहीं पे बैठा देखता है, और he was arrested indirectly. 6 बजे से रात को 1 बजे तक डेस्क पे बैठे पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन. 7 days after 7 days, he was put to Dr. Machiswala and Pune for 2 months treatment. Then they told me, sir, he is perfect, but I don't know what is he thinking so much. He is not liking anyone. अब ये हुआ बिकॉज उसने किससे इंटरेक्ट किया था 11 महीने पहले, और वो इतना भरोसा उस पर करते हैं, जो वो बोलता है वो करते हैं, दिस द रियलिटी ऑफ लाइफ, बिकॉज ये रिपोर्ट नहीं होगी, बिकॉज इसमें एविडेंस नहीं होता है, केस नहीं बनते, और मीडिया इज नॉट इंटरेस्टेड, इसलिए आप तक वो रिपोर्ट आती नहीं, आप तक सिर्फ फाइनेंशियल क्राइम की रिपोर्ट डाली जाती है, मीडिया को जरा भी इंटरेस्ट नहीं, अनलेस सेलिब्रिटी इज अफेक्टेड, सेलिब्रिटी का 5 रुपये भी जाएंगे, वो इस तरीके से हाईलाइट करेंगे, पब्लिक के बीच में क्या होगा, दे आर नॉट इंटरेस्टेड, और जब तक मीडिया को नहीं पता चलता है आप तक न्यूज नहीं आती, ये क्या होगा, तो दिस इज डिजिटल मीडिया, सेकंड कम स्टॉक मार्केट स्कैम्स, हर्ड अबाउट इट, विक्टिम्स हैं, होंगे 100% होंगे, हाथ पर नहीं आएगा, मुझे पता है, सीए लोग बहुत है, आई एम सॉरी टू से, मेरे पास approximately जो स्टॉक मार्केट का 20 to 21% of CAs who has invested in those scams. I may be the only one who doesn't have even that demat account. सर उसमें आपका कुछ चाहिए नहीं, सबको करके देंगे,
I know that, but I don't invest a single penny anyway. और मैं कितना भी attractive offer आएगा मैं stock में investment नहीं करता. अगर सब लोग परमिशन देते तो इस सर को 15 मिनट में मैक्सिमाइज करके सो इजी ऐसे कॉन्फिडेंट लोगों को ही टारगेट किया जाता है. आई एम सॉरी टू से सॉरी सर मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है. जो कि क्रिमिनल का आपको जानता है, क्रिमिनल किसी को नहीं जानता. क्रिमिनल को सिर्फ गैजेट चाहिए प्लस द पर्सन हु आर्ग्यूज. मेरे को पता है ये हवा की बातें होती है. हमारे लिए ये लॉयर बोलते बहुत इतना आर्ग्यू करते हैं जैसे साइबर का मैटर आज ठंडे हो जाते हैं. अभी मेरे लॉयर गिव यू एन एग्जांपल पॉवरी के अंदर शी इज प्रैक्टिसिंग फॉर पास्ट 40 इयर्स. दिस इज आल्सो केस इज रिपोर्टेड ऑन गूगल करके पता चल जाएगा. पॉवरी शी वाज जस्ट इन अ मॉल सडनली उसको कॉल आता है व्हाट्सएप पे मैम यू आर अटेंडिंग दिस केस नंबर तो दे यस was that we have found out that you have taken away the papers from the court और वो confidential papers हैं और वो सारे आतंकवादियों के पेपर्स थे केस कर रहा था. इसलिए आपको अरेस्ट किया गया. तो वीडियो पर तो ऑफिसर तो लॉयर है ऑब्वियसली डिबेट करेगी उसके साथ. नहीं पहले तो तुम्हारा आईडी बताओ तुम ऐसे मुझे कॉल कैसे कर सकते हो. आई एम अ लॉयर. मैडम हमें पता है आप लॉयर आपका बात कौन से नंबर ये है आप यहाँ रहती हो हमें सब पता है और आपको ऑलरेडी अरेस्ट कर चुके हैं हम लोग. तो कैसे कैसे अरेस्ट करोगे 15 मिनट उससे अरेस्ट करो. सडनली जब वो शी फेल्ट समथिंग कैन बी सीरियस. बोलते नहीं सर मैंने ऐसा कुछ नहीं. बोलते नहीं सर मैडम गेट के बाजू में देखो सिक्योरिटी का 4 ऑफिसर खड़े थे ऊपर मैकडॉनल्ड्स है फर्स्ट फ्लोर में. मैकडॉनल्ड्स के ऊपर तो लेडी ऑफिसर है आप कभी फ्रिस्क करके लेके जाने वाले हैं. बट हमने रिपोर्ट निकाली हम बहुत अच्छी लगा ऑफिसर सेफ है. लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि और न्यूज मिली है कि यू कैरिंग एन हैंड ग्रेनेड इन द मॉल. तो इसके लिए अभी आपके ऊपर हमारे एटीएस वाले आएंगे और वो बॉम्ब स्क्वाड आएगा और आपको आप समझ सकते हो दे में किल यू आल्सो शूटिंग. तो इसके लिए आप जाओ चेंजिंग रूम में प्लीज रिस्क योरसेल्फ इंश्योर दैट यू आर नॉट हैविंग एनीथिंग और यू आर हैविंग. And she went to the changing room. She removed all her clothes. The video is on, and she was now not guilty. Because to me, ऑफिसर बोलते हैं नो मैम हमें नौकता जो इन्फॉर्मेशन की गलत थी थैंक यू वेरी मच एंड यू आर फ्री. बस हो गया खत्म. 5 मिनट बाद उसका जो वीडियो था उसके व्हाट्सएप पे आ गया. अब इसके बाद गेम शुरू होता है. मैं तो ये से ट्रेलर था 5 मिनट का व्हाट्सएप पर वो वीडियो आता है. तो मैम अगर ये वीडियो अभी फेसबुक इंस्टाग्राम यूट्यूब सब पे अपलोड हो जाएगा प्लस हम लोग बोलेंगे इसके अंदर एआई यूज करके हम आपके इधर पेज पे 2 हैंड डाल देंगे and maybe declare you as a terrorist. बोलते मैं क्या करूँ बोलते जस्ट गिव मी 5 शेयर. बोलते मेरे पास है ही नहीं लगा. बोलते वी नो आपका आईसीआईसी बैंक अकाउंट जेबी नगर में ये ब्रांच पे आपका अकाउंट है. बोला उसमें बैलेंस है आपका हमारे वहाँ बैलेंस है 23,000 एंड समथिंग. बोला तो 5 करोड़ कहाँ से आपको देने की जरूरत नहीं है. देयर इज अ प्री सैंक्शन लोन ऑन यू ऑफ 5 करोड़. आपको सिर्फ कॉल आएंगे 3 से यस 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 हो जाएगा हम वीडियो डिलीट कर देंगे. एंड शी डिड नॉट बिलीव लॉयर कॉल आया yes 3 times. Suddenly 5 CR credit balance और मैसेज आया 5 CR debit in 5 accounts. Then also she got me. 1 महीने बाद जब EMI hit हुआ उसके अकाउंट में that time she realized ये क्या है. She went to the JP Nagar branch. Obviously the bank manager को मैनेज कर देगा ना लोन तो the free sanction loan by RBI in your account and you have accepted by tele confirmations. And then she found that she is in a trap. She went to Powai police station. No FIR went till today. Because it's never been said. Then you are in trouble. ये अगर आपके साथ हो क्या करेंगे? Sir, one question, sir. The money was transferred online. To whom it was transferred? Whether it That's a part of investigation after FIR. whether that is full all that particular parcels and I have people. So that's why we have filed a private complaint before the court. हम converted into FIR cost. इसको भी हो गए 5 महीने. The court doesn't come so fast. It takes at least 1 year to get a FIR resolution through a court. अब वो FIR होने के बाद ऑफिसर लेकिन तब तक आपको लगता है साइबर क्राइम की आपके सारे IP एड्रेसेस एंड एवरीथिंग विल बी वाइप्ड आउट. Then 5 CR I'm fighting and taken a stay from civil court. That she is not liable to pay that particular no recovery should be communicated very soon. तो वो stay मुझे कोर्ट ने दी है.
लेकिन अभी भी आउटस्टैंडिंग का इसके नाम पे इसका सिविल खराब हो गया, प्लस चीज मेंटेन होगा। अब आप सोचो लॉयर 12 years प्रैक्टिस और उसको अगर कोई बोला आपके कपड़े उठाओ, हंसना आते हैं ना सर अपने को, बट हो सकता है इट इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। ये आपको क्यों नहीं मालूम है, क्योंकि आपको वो न्यूज नहीं पहुंचती, लेकिन आपके घर में भी होता होगा तो आपको पता नहीं होगा। बच्चे बोलते नहीं है बिकॉज पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है कि अपने बच्चों या बच्ची के साथ बैठे। आई टेल यू 100% एवरी पर्सन इज अ विक्टिम। सब लोग बैठे कहीं ना कहीं विक्टिम है, लेकिन बोलते ही नहीं बिकॉज शर्म आती है। ये शर्म की वजह से क्राइम इज एक्सपांडिंग, क्राइम इज एक्सपांडिंग 1000 टाइम्स। आज से 10 साल पहले देयर वाज नो साइबर कोर्ट्स, देयर वाज ओनली नॉर्मल पुलिस स्टेशन, सिर्फ पुलिस स्टेशन होते थे। 10 साल हो गए, देयर इज अ साइबर कोर्ट्स, देयर आर साइबर पुलिस स्टेशंस, देयर आर आईसी कोर्ट, देयर आर सर्विंग्स, इतने डिपार्टमेंट्स बन चुके हैं। उसके बाद क्राइम नीचे भी और क्राइम 1000 टाइम्स बढ़ गए। क्यों? बिकॉज वी डोंट शेयर आवर एक्सपीरियंस, वी आर फीलिंग अशेम्ड। यार मैं मेरे बारे में बताऊं तो लोग बोलेंगे तू पढ़ा लिखा तो विक्टिम बन गया है। दिस इज द सोशल स्टिग्मा इज करिंग अस, एंड आई टेल यू यस। शेयर करने से भी फायदा नहीं ना, क्योंकि वो तो वैसे भी मैस्मराइज करने ही वाले हैं। तो नहीं करने के बाद भी फायदा है, हो सकता है आपके बाजू वाले बच जाए ना। ये तो बच्चा है, उनको तो ये ऐसे भी मैस्मराइज Not करते हैं। necessarily he or she will be the same target what you have. Financial plan को सकते हैं, link का हो सकता है, OTP sharing का हो सकता है, उसको हो सकता है। And awareness. सर बोलेगा आपकी क्लास आपने चलाएगा कुछ डोंट टच इट, नहीं तो बोलेगा ना बोलते रहा और पास करो। ये तो ऐसे Yeah, you should tell me that you should wear a mask. That's also a message. right. That's a message that there's something is going on. Please. The same thing. I just send you a mask with a message. How senior citizens, उनको क्या पता है? पेरेंट्स के साथ में बैठो, प्रॉब्लम की सबसे ज्यादा सीनियर सिटीजन्स बनते हैं, बिकॉज उन तक तो कोई न्यूज नहीं पहुंचती। बस बच्चे लोग भी अपना बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यूट्यूब सिखा देते, व्हाट्सएप सिखा देते, लगे और सीनियर भी बेचारा उसी पे लगा रहे, उनको नहीं पता इसके रिपरकशंस क्या हो सकते हैं। जैसे हम चाइल्ड लॉक लगाते हैं वैसे सीनियर लॉक लगाना भी जरूरी हो गई। और सडनली यूट्यूब पे कुछ ऐसी चीजें आ जाएगी जो उनको डरा देगी, व्हाट्सएप पे जो न्यूज उनको नहीं पता है, टाइम पास करना है ना उनको, तो सीधा फॉरवर्ड करना शुरू हो गए। दैट फॉरवर्डिंग विल लैंड इन इनटू ट्रबल। I'll give you one more example of Vasai कोर्ट के हमारे प्रेसिडेंट, बाहर के प्रेसिडेंट, he was 72 years old, ये भी एक साल पहले की बात है। और कुछ ग्रुप के अंदर एंटी रिलीजन कोई पर्टिकुलर मैसेज आया है, he read it, he forwarded it to some other group, और उसी ग्रुप के अंदर कुछ पर्टिकुलर रिलीजन के लोग थे, वो सिविल मैसेज मानिकपुर पुलिस स्टेशन पे और करीब 200-250 लोग पहुंच गए और सडनली एफआईआर कर दी, बिकॉज इट्स एन एंटी रिलीजन, यू कैन नॉट और एनीवन सेंटिमेंट्स, आपको पहले वेरीफाई तो करो क्या है, इन्होंने फॉरवर्ड कर दिया, क्या हो गया एफआईआर हुई। यू वोंट बिलीव इट वाज अ राइट लाइक सिचुएशन, राइट लाइक सिचुएशन। 72 ईयर ओल्ड जो प्रेसिडेंट की जो हालत हुई थी, देन अल्टीमेटली कम्युनिटी के दो लीडर्स बैठे, सर इज अ सीनियर, ही डजंट नो, जस्ट व्हाट्सएप फॉरवर्ड करने की आदत लग चुकी है, लेकिन जो टेंशन उनके घर वालों ने निकाला वो ना है। इसके लिए हमें हमारे सीनियर्स के साथ बैठना बहुत जरूरी है। खाली देखिए उनसे ड्यूटी, जैसे बच्चों के साथ बैठते हैं सीनियर्स के साथ बैठते, प्लीज डू नॉट फॉरवर्ड ईमेल्स एंड वेरीफाई इट। ऑटो डाउनलोड उनके मोबाइल से बंद किया, ऑटो डाउनलोड होगी तो वो विक्टिम्स बन सकते हैं। सेकेंडली एमजीएल स्कैम, अभी कल रात को ही मेरे घर गया, आई वाज एट एमएलजी क्रिकेट क्लब, अमित साकम जी का था, मैं वहां पे था, तो वहीं पे मेरे बाजू में जो बैठा, जब मैं एक्टिविटी टीचर वो उसने अपने खुद से बताया, सर अभी 3 घंटे पहले मेरी बहू एनजीएल स्कैम की विक्टिम बनी, 3 घंटे पहले, मतलब तो क्या नहीं, पूरा पुलिस स्टेशन में वो कंप्लेंट लिखा दी थी। यू नो एनजीएल स्कैम, एस्केलेशन के लिए रात को फोन आते, रिकवरी अपने इंडिया इतना फास्ट, अरे हम अमेरिका को पीछे छोड़ देंगे अगर रिकवरी इतना फास्ट होने लगे। थोड़ा थॉट प्रोसेस यूज किया, डोंट पैनिक। अरे 2 मिनट का कुछ है तो हो गई। इनकम टैक्स में द बिगेस्ट हैकर वाज डिक्लेयर्ड फ्रॉम मेरा रूट नयानगर, इनकम टैक्स फ्रॉड, ही वाज डिक्लेयर्ड एज द बिगेस्ट हैकर इन द वर्ल्ड। जयेश भाटिया, 23-24 ईयर ओल्ड बॉय, उसने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चुरा रहा है।
वो भी यूएस के यूएस because in US people are fear to tax rather than murder, rape, कुछ नहीं करते tax से बहुत डरते what he did he was running a call center in his own room rented room in Mirror सारे सॉफ्टवेयर लगे हुए who has the essence of the Englishman US Englishman और income tax पर green card data सब people started paying but किससे को क्या करूं ये पकड़ा भी कब गया जब उसने अपने गर्लफ्रेंड को एक गाड़ी गिफ्ट कर दी थी तो ही वेंट टू परचेज इट इन कैश और मैंने इमीडिएटली पुलिस बोले कैश आती है उनको उनके समय में कैश लेके जाएंगे इवेंट अबाउट 60-75 लाख कुछ कैश लेके चला गया और पुलिस ने इमीडिएटली गाड़ी बुलाई पुलिस ने फॉलो किया उसके हमें रेड मारी तो इट वाज अ स्मॉल रूम वेयर ही वाज अ डार्क वेब कंपनी और उसको एफबीआई आई अरेस्ट की राइट नाउ ही इज द ट्रायल इन यूएस Just imagine. ये ऐसे होते हैं और मुंबई में भी भरे पड़े हैं हमें जानता लगाने की जरूरत नहीं है जानता लगाने मीडिया प्रमोशन आज अगर राजस्थान के अगर होंगे तो गंगानगर फिर ब्रह्मा जी का तो पुष्कर ये क्रिमिनल्स रिलीजियस प्लेसेस पे बैठते हैं जैसे इन द रिलीजियस प्लेस बिकॉज रिलीजियस प्लेसेस बहुत सेंटिमेंटल होते हैं पता है अगर मैंने कुछ क्राइम किया तो पुलिस की रेट नहीं होगी रेट होती तो पीपल से यूज क्राउड गैदरिंग फॉर दोस प्लेसेस फिर वहां पे न्यूट्रलिस्ट बन के घुसते हैं मुझे चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या चाहिए लैपटॉप राउटर और सैटेलाइट राउटर बस यू डोंट रिक्वायर अ होल इंफ्रास्ट्रक्चर वहां बैठते हैं एंड प्लस द बॉर्डर्स ऑफ द कंट्री अगर चाइना के बॉर्डर पे बैठे आसाम में गए चाइना के बॉर्डर पे अगर पुलिस केस करेगी तो क्या होगा चाइनीज आईटी है तो चाइना में इंडिया में ही है but he's taking the connectivity from China. The same thing he used from Bangladesh. Criminals are so smart. And it's a syndicate. It's not a single person. It's an organized crime. It's an organized crime. There are full call centers. I was in UAE, Russell came out. So UAE to common हो गया second Mumbai है. तो गए होंगे Russell came out करके ये किया. वहाँ पे literally 7 floors. पुलिस को पूरा सील करना होगा. 7 floors was a call center. जिसके अंदर फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर टास्क डिवाइड किए गए फर्स्ट फ्लोर विल ओनली कॉल फॉर केवाईसी सेकंड फ्लोर विल ओनली कॉल फॉर बैंक डिटेल्स थर्ड फ्लोर विल ओनली कॉल फॉर योर मार्केटिंग ऑपरेशंस एंड द लास्ट फ्लोर विल बी द एक्चुअल हैकर्स जो आपके सिस्टम में घुस के आपका पैसा ट्रांसफर करेंगे क्रिप्टो करेंसी नाउ कम्स क्रिप्टो जो आपका हॉट टॉपिक होगा मुझे पता है आपको नहीं कितने लोगों ने क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया है सीएम वो भी कई बार आते हैं इसका रिकॉर्ड बाकी है तो उनको पता चलता है ईमेल एड्रेस और बट हाउ टू अवॉइड सच ईमेल्स एंड हाउ टू यूज मतलब डाउनलोड फाइल सबसे पहले बेसिक सीखना बहुत जरूरी है जस्ट हैविंग अ कार डजंट मेक यू एन एक्सपर्ट जस्ट हैविंग द नॉलेज ऑफ अ मोबाइल डजंट मेक यू एन एक्सपर्ट जैसे सबने बोला ईमेल्स इट्स वेरी इजी टू डू अ मेजर इमेजिंग ऑफ एन ईमेल जैसे रैंसमवेयर होता है मैन इन मिडिल अटैक नाम सुने मैन इन मिडिल अटैक तो सबसे ज्यादा कॉर्पोरेट्स के साथ होता है ईमेल में ईमेल से ये ईमेल हैकिंग नहीं होता है ईमेल फिशिंग कर आप लोग फिशिंग बोल सकते हो इट इज द सेम ईमेल फिशिंग क्या होता है रेप्लिका बनाना कोई डेटा चेंज करके आ कितना चेंज किया है जैसे मैंने अभी सर को एक ईमेल भेजा पंकज बापना @gmail.com से तो इनको बोला सर मैं 8 बजे 9 बजे करेक्ट तो इन्होंने बिलीव कर दिया तो नहीं लोग लगाएंगे और मैं 8 बजे का पकड़ा तो बोले सर आपने तो 9 बजे बोला मेरे 9 बजे का बोला आपका ईमेल है मैं चेक कर रहा हूँ पंकज बापना जीमेल ये मेरा नहीं मेरा नहीं अभी ये कैसे हुआ मैं इन द मिडिल man in the middle इसको कहते हैं मतलब someone is watching my case उसने कुछ नहीं किया खाली सब्जेक्ट मैटर को चेंज करके रीफॉरवर्ड कर देते हैं और मेरे ही ईमेल से को जा रहा है अब सबसे बड़ा ना हाउ टू वेरीफाई यू शुड ऑलवेज गो टू द ब्राउज़र एंड एक्सेस योर ईमेल्स बड़ा ध्यान से करें सैकड़ों ईमेल आते हैं हाउ टू एक्सप्रेस हम यूज करते हैं लेकिन डोंट हैव द टाइम हमारे को 10 ईमेल है कितनी बार ब्राउज़र में जाके तो बिकॉज ब्राउज़र के अंदर मेरा हेडर आपको उसका डीएनएस नंबर डीएनएस आईपी भी आता है ये कहां का है प्लस ब्लॉकर को एक्टिविटी आपकी ईमेल आईडी है इफ इट इज अनरिकॉग्नाइज्ड आईपी द सर्विस प्रोवाइडर विल नॉट अलाउ दैट ईमेल टू कम इनटू योर इनबॉक्स
These are the basic things which you have to build on. Because एक बार आपने because ये corporates को क्यों टारगेट किया जाता है? पैसे बहुत लार्ज स्केल पे पैसे खर्च होते हैं, एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स से डॉलर्स के अमाउंट चेंज कर दिए जाते हैं, बैंक अकाउंट डिटेल चेंज कर दिए और एक बार पैसा गया, इट्स इम्पॉसिबल फॉर यू टू गेट इट बैक. नाउ देयर आर वर्चुअल बैंक्स व्हिच आर कमिंग अप. अभी मेरे पास एक केस है जहाँ पे साउथ अफ्रीका के अंदर एक सिटी बैंक का ब्रांच है. मेरे क्लाइंट ने मजदूर अंदर में केमिकल ट्रेडर पैसे ट्रांसफर कर दिए साउथ अफ्रीका सिटी बैंक में फॉर अराउंड $1 million. पता चला माल को उसको पेमेंट ही नहीं किया, उनको वेंडर सेटल did not settle the payment, so why did I settle the goods? Now there is a dispute between both of them. He went to side because $1 million है. So it doesn't go to a local position, it goes to cyber crime position. वहाँ इन्वेस्टिगेशन किया, सिटी बैंक को नोटिस भेजा वहाँ पे कोई ब्रांच ही किसी को. There is no branch in that particular area. They logged out to the South African consulate. Consulate को verify किया. Sorry, you don't have some branch over there. First of all, there is no city bank over there. Are equally configured, and they also took help from a hacker. These are virtual banks. Virtual banks, where I had the Swift code, ultimately what, how will the international transaction happen? Swift codes are scalable. It's a US company which gives you Swift code. तो आपको भी अगर कोई बैंक खोलना है, just comply with the provision, आपको Swift code दे देगी. It will become a bank. So this is where, अभी problem ये हो गया है, इसको तो $1 million गए. Not possible that he can retrieve the money now. Impossible. Okay. अब इसका एक ही इलाज हो सकता है, जिसकी वजह से जो आज भी इंडिया के अंदर हम लोग नहीं लेना चाहते, which is cyber insurance. अगर वो इंश्योरेंस लिया होता तो उसको $1 million मिल जाते हैं. पर यहाँ पता ही नहीं है कि there is cyber insurance. तो फिर इंटेलिजेंस का एक तला जैसा नहीं आप टोटल ट्रांसफर किए और चलो पुलिस प्रूव नहीं कर देगी सब एक अकाउंट चीटिंग हुई, बट क्रॉस बॉर्डर. और सेकंड थिंग वहां पे कोई ब्रांच ही नहीं है तो आप अक्यूज किसको बनाओगे? Whom are you going to make an accused? No one. So it's a हवा में सब कुछ. और these are the things which are happening. अब मैं आप लोगों तक में जैसे डिजिटल अरेस्ट हो गया सब कुछ हो. Now सब लोगों को लगता है मेरा पैसा जाएगा, कोई घर देता है तो मेरा पैसा कभी चला जाएगा. अब मैं कहता हूँ अगर पैसा आ गया खाता है तो करना चाहिए. अभी मेरे पास किसी सबसे ज्यादा ज्वेलर्स है, डायमंड मर्चेंट है, बेचारे वो रोज पुलिस वालों नॉक करते हैं उनके दरवाजे पे, and they are taken into task. ये हालत है. Receiving money is now a vital era. क्योंकि पैसा ये किस तरह मेरे अकाउंट में आए, मेरे को में आया अकाउंट फ्रीज कर दिए जाते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग आपके ऊपर डाला जाता है, या फिर साइबर क्राइम, यू आर द रिसिपिएंट ऑफ बेनिफिशियरी ऑफ साइबर क्राइम इनपुट. अब इसके अंदर आप लोग बिकॉज यू आर द सीएस, तो मैं आप लोगों को कुछ ज्ञान मुझे भी मिल सकता है. अगर ऐसा कोई ट्रांजैक्शन हुआ तो हाउ कैन वी सेव आवर आवर प्लीज ट्रांजैक्शन फीस करना पड़ेगा. Ask the bank that back. Go to the bank and it's not all the bank किस तरह में किया है कुछ कोई आएगा आपके क्लाइंट आपके पास वो ये फाइनेंस रिलेटेड इश्यू मेरे साथ खुद के साथ हुआ था. तो अपना अकाउंट फ्रीज करवा दें. मेरे डेबिट क्रेडिट ट्रांजैक्शन दोनों फ्रीज पे क्योंकि रोज आते जाते थे. चलिए सॉल्यूशन थोड़ी है. नहीं दिस सॉल्यूशन वाज देयर बिकॉज़ व्हाई आई टुक दैट एक्शन वाज क्योंकि मेरे क्लाइंट फ्रीज करते मुझे पता है जब स्ट्रेट सोर्स से पैसा आता है तो आई डोंट नो क्रिमिनल पैसा होता तो सर अपने अकाउंट फ्रीज क्यों करा दो? मेरे को पुलिस ने भी यही बोला. पुलिस को अपने अकाउंट फ्रीज करने का गलत आदमी है. आप अपना अकाउंट क्यों फ्रीज करा दो? पैसा आपको तो बैंक को कोई क्रिमिनल पैसा होता है. How can you say कि क्रिमिनल का पैसा होगा? That is आप ऑडिट करा दी. आप ऑडिट करा दी सर. पता है कि सोर्स है तो ऑडिट का मीनिंग क्या होता है? देखिए ऑडिट में साइबर ट्रांजैक्शन फ्रॉम स्ट्रीट. First of all, online transaction, it's not a cyber transaction, it's an online transaction. Correct? When there is an online transaction, how can you say it's from a cyber crime? How can you say from a पुलिस also told me आपके actually, first of all, police is just an executive body. It's not a judiciary body, it's an executive body. उनके पास complaints है, they are just to trace the criminals. They are not there to provide you solutions, do's and don'ts. वो आपको एक क्रिमिनल को पकड़ने की एक टास्क है. अब आप क्या अगर कोई पैसा आ रहा है, आप खुद का अकाउंट फ्रीज नहीं करवा सकते. इनोसेंट हाउ कैन यू फ्रीज माय अकाउंट?
Now, first of all, Supreme Court का अभी एक ruling आया है, because बहुत से अभी जैसे for example कल जो मलाबार गर्ल्स, कल्याण, तनिष, इन सब people अभी criminals क्या करते हैं, जैसे ही पैसा ट्रांसफर होता है, first year, second year, third year they go to the jewelers. Jewelers के पास जाते हैं, उनसे ज्वेलरी खरीदते हैं, because jewelry is the first thing where it can be sellable without anything. Yes. And it can be sellable any part of the world. वहां से ज्वेलरी खरीदते हैं, suppose मुंबई में खरीदा, तो जाके राजस्थान में जाके बेच जाएंगे कैश में. Now the trade, the trace होता है beneficial trade. Now Tanish और मलाबार और कल्याण is also part of the recipient of the stolen money. उनके अकाउंट फ्रीज कर दिया जाए. I am already fighting in the high court. I am against मलाबार. क्योंकि मेरे क्लाइंट का 5 करोड़ गया, तो उसमें से 3.5 करोड़ की ज्वेलरी खरीदी गई रोहन वाला ब्रांच. तो अभी उसके लिए हमने फ्रीज करवा दिया. अकाउंट फ्रीज सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से लीन कर सकते हैं. फ्री द होल अकाउंट. You can just lean the disputed amount. तो हमने 3.5 करोड़ लीन करवा दिया, क्योंकि उनके अकाउंट में 150 करोड़ से ऊपर, उसमें 3.5 करोड़ लिए. We took an order from the if my bank wants their money back, he has to go to the local court, the jurisdictional court, जहाँ पे FIR. So we went to Borivali court, वहाँ से order किया, court gave an order in our favor, so it was my money. They went for appeal in sessions court, appeal was rejected. I got the money. They went to high court. High court to the state. खाली वो नहीं, उसके सारे अकाउंट पे stay है. और just imagine एक ट्रांजेक्शन के लिए गए थे, तो पूरे में आ गए उससे. Now he's fighting in Supreme Court. उनको ज्वाइन किया कल्याण, तनीष, जॉय लुकास, इन सब सारे ज्वेलर्स. But I am also a part of the Jewelers Association. हम लोगों ने भी भले मैं ऑपोजिट साइड से ऊपर वन पर्टिकुलर केस, एसोसिएशन को तो सपोर्ट कर रहे हैं. I also intervened in Supreme Court that there should be some SOPs. Why the jeweler is responsible? How will he recognize the criminal face? And that also third layer हो गया. Police 12 layer तक फ्रीज कर दी. 12 लेयर छोटा से छोटा चाय वाला ऑफिसर उसके अकाउंट फ्रीज कर दिए जाते हैं. उनका पेटीएम से किसी ने 10 रुपया ट्रांसफर किया. अब जिसने 10 रुपया ट्रांसफर किया उसको क्या पता उसके अकाउंट में कहां से पैसा है. अब दिस इज वेयर विदाउट इन्वेस्टिगेशन द लीड्स आर. ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है प्रेजेंट अपने कंट्री में चल रहा है. फ्रीजिंग ऑफ अकाउंट्स अननेसेसरी एंड स्पेसिफिकली ज्वेलर्स. अभी तो बैंक्स के अंदर क्यों नहीं लगते. अब मैं जाके अगर कैश डिपॉजिट कर रहा हूं बैंक में, या मैं ऑनलाइन ट्रांसफर टू बैंक के अंदर कर रहा हूं, दैट इज फ्रॉम अ साइबर क्राइम इनपुट, वो अकाउंट फ्रीज होगा. एंड देन फॉर वी कैन एडवोकेट. आई समन दैट पर्टिकुलर मैनेजर, ही हैज बीन कॉल्ड टू द कोर्ट एज अ विटनेस, अननेसेसरी टाइम वेस्ट, बहुत से प्रोसीजरल प्रॉब्लम शुरू हो जाते. तो दिस आर द वे यू शुड हैव प्रॉपर ऑडिट ऑफ योर बैंक इनकमिंग अकाउंट्स. पैसा कहां से आया है. जैसे सर ने बोला मेरे को नहीं पता किधर से मिला, चोरी का भी कर सकता. हाउ कैन यू से चोरी का कर सकता. आपका जब ऑडिट होता है वीकली, जहां पे हम मंथली करते हैं वहां वीकली है ना अकाउंट हु कीप्स एन आई मैक्सिमम इनवॉइसेस ये पैसा. और सपोज पैसा आ भी जाता है, इमीडिएटली रेड फ्लैग दैट पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन. रेड फ्लैग, दैट इज नॉट अ रेड फ्लैग. There is a facility, online facility. You can call the bank, you can visit the bank, or you can raise an online query. आपको उस ट्रांजेक्शन का आईडी नंबर आपको उस क्वेरी में डालना है and say रेड फ्लैग. रेड फ्लैग मतलब you don't know from where that money has come. So bank will immediately show you are safe. Police will not harass you, court will not harass you. नहीं तो unnecessary use the crisis of law. और अगर आप first year, second year, you may get arrested also. Your first year is the first accused, जिसको चार्जशीट में डाला जाता है. तो इससे रिसीविंग मनी इज मोर स्कैरी देन पैसा जाना. पैसा जाना तो अपना खुद का क्लेम करे नहीं भी करे, बट ये इससे आपको कौन बचे. तो दिस इज वेयर यू शुड हैव एन बेसिक नॉलेज. सेकंड, अगर आपका पैसा जाता है, डोंट रश टू द पुलिस स्टेशन इमीडिएटली. दैट इज नॉट द फर्स्ट स्टेप. फर्स्ट स्टेप इज रेज अ डिस्प्यूट विद द बैंक. फर्स्ट स्टेप इज रेज अ डिस्प्यूट विद द बैंक, एंड दैट शुड बी अ डिस्प्यूट. देयर इज अ डिस्प्यूट फॉर्म अवेलेबल इन द बैंक. Bankers don't give those forms. Yeah, just create copy. Bankers don't give the dispute forms because dispute forms are monitored by RBI. Serial numbers होते हैं. तो क्या करते हैं वो नहीं देते. Over the plate paper पे लिख के देते. No, you have the right to demand the dispute form. नहीं देता है, then put an online query. हर बैंक के अंदर mandatory है RBI से and best of the information technology है. They have to have a vigilance department. तो आप जैसे ऑनलाइन जाओगे एक्सपेंस बैंक के, आप ये रेज अ कंप्लेंट क्लिक करो, देयर इज अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है उसको भर दो, और आपका जो भी पीडीएफ है एसएमएस का चैट स्क्रीनशॉट उसको रेज करो एंड राइट डाउन द वर्ड डिस्प्यूट. बिकॉज़ आरबीआई का 2017 और 19 सर्कुलर के हिसाब से
the dispute should be raised by the victim. That word should be there. But जैसे ही डालोगे, you get a protection of competition. So these are the basic things which you have to take care. I'll take a break because Amit ji is over here. Welcome, Amit ji, Sadam ji, BJP. Our chief guest has arrived, so we have taken a short break for 10 minutes only. So, and thanking Amit Satyanarayana for gracing the occasion on short notice. So I request Mehboob Sadiq to give introduction is not required, but still not at all. So, nice secretary to give brief introduction followed by momentum. Very good morning, friends. We are proud privileged to have BJP Mumbai President Mr. Amit Sadam with us today. We welcome. Sadamji is three-term member of Maharashtra Legislative Assembly representing the Andheri West constituency. A prominent grassroots leader. He was appointed as president of the Mumbai Bharatiya Janata Party with a primary mandate then to lead the party in civil elections, which we have seen that with the thunder majority BJP has come in the civil elections. When I said the grassroots leader,